हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेचर ऑफ रिवोल्ट। देयर इज अ नेचर ऑफ रिवोल्ट हियर। अ बिग डिबेट सराउंडेड रिवोल्ट ऑफ 1857. The British historians describe the event of 1857 to 1858 as the immunity war, the Sepoys, and it should be of pharaohs. There is a mention there here that is there were many surprising by the Sepoys is a period to 1857. One example is the Valoris is a mention of July 1806, where Indian Sepoys has revolted against the East India companies and garrisons, and nevertheless order was restored very soon, and the revolt did not go beyond of the confine of the continent. But if you look closely into the fact of 1857, you will see the difference. The revolt was started by the Sepoys, but was joined to the large number of the civilians population. The participation of the peasant and artisan made the revolt is spared and the popular event. In some area, the common people revolted even before the Sepoys, and all this is so that it was a clear popular revolt. It was characterized by the Hindu-Muslim unity. The unity between different religions also existed. Rebels in one part of country helped people fighting in other areas. The revolt should be seen as the first nationalist struggle in India from independent from the foreign rules. You will realize that the revolt of 1857 was not one moment but only there is a many. There was there is realized the revolt of 1857 was not one moment but many. It was not a class revolt either. The peasants did not be rebels against the landlords. They only direct attacked against two money lendings and grand leaders or the representative of the British Indian government. But their policy strongly influenced their way as a particular reasons and was going to react. The revolt in the Awadh as well as other reason was popular in that it pretended to people as well and was carried out by them. Talukdar and the peasant is the Awadh is fought together against a common foe. But there is no doubt that the revolt of 1857 was the first time that a soldier of Indian army extracted from different communities. There is a Hindu, Muslim, landlord, peasant had come together in their oppositions to be British. It also provided their necessary foundation for their later successful anti-colonial struggle against the British. कहते हैं अगला पॉइंट जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, विद्रोह की प्रकृति। आखिर विद्रोह की प्रकृति किस प्रकार की थी? 1857 के विद्रोह आंदोलन के चारों ओर आज भी एक बहस जारी है। अंग्रेजी इतिहासकार जो 1857 से 1858 की घटनाओं को सैनिक द्वारा की गई सैनिक बगावत मानते हैं। तो यहाँ एक उल्लेखनीय ये भी है कि 1857 से पहले भी सैनिक द्वारा अनेक विद्रोह किए गए और इसका एक उदाहरण है जुलाई 1806 में बेलूरी की सैनिक बगावत, जहाँ भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गैरिजन के खिलाफ विद्रोह किया था। बेशक बहुत जल्द अनुशासन बहाल कर दिया गया था और यह विद्रोह सैनिक छवनी में दीवारों तक ही सीमित रहा। तो कहते हैं बहुत से प्राकृतिक विद्रोह हुए हैं, परंतु यदि आप 1857 के तथ्यों का गहराई से अध्ययन करें तो आपका इसका अत्यंत स्पष्ट दिखाई देगा कि विद्रोह के आंदोलन की शुरुआत सैनिकों द्वारा की गई थी, परंतु बहुत बड़ी संख्या में असैनिक जनमानस भी इसके साथ जुड़ गए थे। किसानों और शिल्पियों द्वारा उनमें भाग लिए जाने की वजह से ये आंदोलन बहुत दूर दूर तक फैला और एक लोकप्रिय घटना भी बन गया। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में
साधारणतः जनता ने सैनिकों से पहले ही विद्रोह कर दिया था। और इससे यही पता चलता है और स्पष्ट होता है कि यह आंदोलन लोकप्रिय विद्रोह था और इसे हिंदू मुसलमान एकता के रूप में भी पहचाना गया। विभिन्न क्षेत्रों में भी एकता का अस्तित्व दिखाई दिया और देश के एक भाग से विद्रोह के अन्य क्षेत्रों के लोगों को लड़ाई लड़ने में सहायता भी की। इस विद्रोह को अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो था प्रथम स्वाधीनता संग्राम थी। देखा जाए तो 1857 का एक विद्रोह एक आंदोलन नहीं थी बल्कि एक आंदोलन थे। यानी कहते कि विद्रोह आंदोलन नहीं थी, एक आंदोलन थी। यह किसी भी वर्ग का विद्रोह नहीं था। किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध बगावत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अनाज के ऋणदाता, व्यापारी और अंग्रेज की भारतीय सरकार के विरुद्ध आक्रमण किए थे। परंतु उनकी नीतियों ने किसी भी विशिष्ट क्षेत्र को उतने गहरे से प्रभावित नहीं किया कि संपूर्ण क्षेत्र ने एक ही प्रकार के प्रतिक्रिया की। अवध और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह इस प्रकार लोकप्रिय हुआ कि इसका संबंध समग्र रूप से लोगों पर पड़ा और उन सब ने मिलकर इसका संचालन भी किया। अवध में कृषकों और किसानों ने मिलकर इकट्ठा ही एक सामान्य शत्रु के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1857 पहली बार विभिन्न जातियों, हिंदुओं और मुसलमानों से भारतीय सेना के लिए चयनित सैनिक, जमींदार और किसान एकजुट होकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए और इन्होंने बता दिया कि आने वाला समय में ये फिर से देखने को मिलेगा। अब उस समय ऐसा आएगा जब अंग्रेज को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसने अंग्रेजों के विरुद्ध बाद में हुए उपनिवेशियों और विरोधी संघर्ष के लिए भी आवश्यक बुनियादी सफलता भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीयों के बात समझ में आ गया कि अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं हैं। और कहते हैं भारत में जब ऐसे ऐसे नेता जन्म लिए जिन्होंने अंग्रेज को बताया कि हम मर मिटने को भी तैयार है अपने देश को आज़ाद करने के लिए, फिर अंग्रेजों ने बात समझ लिया कि भारत में अब उनकी नहीं चलने वाली है। फिर उन्होंने फूट डालो राज करने की नीति अपनाई और बेशकली भारत को दो टुकड़े कर दिए, लेकिन अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़रूरी थी। हमने हर एक तथ्य पे, हर एक बात पे प्रकाश डाला और जानने की कोशिश किया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और यही प्रावधान है आपके लिए और यही है आपको त्रिपाण सिटी सेंटर का हेल्प करने का एक तरीका, जहाँ पर आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकती हैं। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो ज़रूर त्रिपाण सेंटर के साथ बनेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का ये सबसे अच्छा माध्यम है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये चैप्टर वाइज है, यहाँ पर चैप्टर को लेकर चला जाता है, जो कि आपके ज्ञान के लिए पर्याप्त रहती है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, इसमें आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या क्लास वाइज वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं।